Good morning, students. So today we are here to start our new lesson, and this will be last lesson of geography, and its name is Lifeline of National Economy. Our lifeline is our veins and arteries. They bring blood and they bring the we can say bad blood to the heart, and from heart again they brought it to the other parts. That's why we are surviving. Similarly, roads and railway, then waterways, these are the lifeline of the country. If we are not having this all, our national economy will downfall, and it won't stable, and it won't go up to the we can say as we are planning to go as a developed country. Okay, so today's lesson is about all the transportation. So let's start the lesson. Then we use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. Goods and services do not move from supply location to the demanding location on their own. The movement of these goods and services from their supply location to the demanding location necessarily is the need of the transportation. अगर हम देखें तो प्रतिदिन हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। कुछ चीज़ें तो हमारे खुद के लोकल एरिया में अवेलेबल होती हैं, कुछ चीज़ों को हमें बाहर से लाना पड़ता है। वो बाहर बनती है या बाहर में ही मिलती है। वहां से यहाँ तक लाने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की मदद लेनी पड़ती है। अधिकतर जो सामान बनता है वो स्वतः ही बिक्री के लिए नहीं आ सकता, अतः उससे क्या जरूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन की, ताकि डिमांडिंग लोकेशन जहाँ उसकी जरूरत की डिमांड है वहां तक पहुंचाई जा सके। Now, some people are engaged in facilitating these movements. These are known as to-be trader, who make the products come to the consumer by the transportation. अगर हम देखें तो जो ये सामान अवेलेबल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लाते ले जाते हैं, उन्हें हम ट्रेडर कहते हैं, और हम होते कंज्यूमर जो कि उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन वी कैन सी the demand of any country was dependent upon the production of the goods and services as well as their movement and overplace. किसी भी देश का डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर होता है कि उसके नागरिकों को सामान कैसे और कब पहुंचाया जाता है, कहाँ से पहुंचाया जाता है, कितनी जल्दी पहुंचाया जाता है। जैसे डिमांड हुई और वैसे पूर्ति से आ गया तो हम उसे बोलेंगे कि हाँ बहुत बेहतर सर्विसेज है इनकी। बिल्कुल वैसे ही अगर हम देखें तो गुड्स और सिस्टम की भी है कि जहां पर उसकी डिमांड है वहां पर उसको क्या करना पड़ता है? पहुंचाना जरूरी होता है। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। The movement of these goods and the services can be over 3 important domains of the earth. पृथ्वी के 3 हिस्सों पे हम क्या करते हैं? सवार होते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। उसमें लैंड, वाटर, एयर, इसी के नाम पे उन ट्रांसपोर्टेशन का नाम भी रख दिया। अब छोटी क्लासेस से इनको याद करते आते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखें तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है। For long, the trade and transportation were restricted to a limited space. With the development of the science and technology, the area of the influence of the trade and transport expand far and wide. उस समय तक हम निश्चित जगह तक ही व्यापार करते थे और निश्चित इलाकों में रहते थे, परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और सिस्टम डेवलप हुए, लोगों को पता चला कि हाँ ऐसे भी व्यापार करना से बहुत अच्छा व्यापार होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंडेशन से ही क्या हो गया? सामानों की बिक्री भी तेजी से बढ़ गई। Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. आज दुनिया जो एक बड़े गांव के रूप में देखने में आ रहा है कि हर इलाके में हम सामान बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं।
Transport has been able to achieve this with the help of equal development of the communication system. Therefore, the transport and communication and the trade are contemporary to each other. अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम्युनिकेशन के साथ जुड़ने के कारण इतना तेज हो गया, इतना रैपिड हो गया कि पूरी दुनिया छोटी सी दिखाई देती है। छोटा सा लगता है कि कहीं पे भी कभी भी वार्तालाप कर लो या सामान पहुंचा लो। अगर हम देखें तो ये चीज जो है आज बहुत जरूरी है एक व्यापार, एक डेवलप्ड कंट्री के लिए कि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन और व्यापार यानी कि ट्रेड, व्यापार से डायरेक्ट आ जाता है इकोनॉमी। ओके, तो वो जो है वो बहुत रैपिड हो, बहुत फास्टर हो, बहुत कन्वीनियंट हो, आराम से हो जाए। तो ये जो चीज है वो उस देश को डेवलपमेंट की ओर लेके जाता है। टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज डाइवर्सिटीज एंड लिंग्विस्टिक एंड द सोशल कल्चर प्लुरलिटी। अगर हम देखें तो आज भारत अपने स्वतः खुद विभिन्न प्रकार के सामुदायिक रीति रिवाज, भाषा और अगर हम देख सकते हैं हमारी विभिन्नता और हमारी जो भौगोलिक विभिन्नता है यानी जमीन के इलाकों की विभिन्नता, ये और बहुत बड़ा जो हमारा साइज है यानी कि एक्सटेंशन ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, इन सब के बावजूद हम एक दूसरे इलाके से बेहद अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारी यातायात जो सुविधा है, यातायात माने ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं बहुत अच्छे से चल रही है। Then railway, waterways, then airways, then newspapers, radio, television, cinema, and internet, etc. have been contributed to its social economical processes in many ways. ये सब चीजों ने हमारे सामुदायिक तरीके से, हमारे जो कह सकते हैं सांस्कृतिक तरीके से हमारे आर्थिक नीतियों को मजबूती दी है। The trader from the local to the international level have added to the vitality of the economy। हमारे देश के खुद के व्यापारी और विदेशी व्यापारी सिस्टम जो है उसने हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ही अच्छा या वर्टल किरदार जो दिया है या उसको बूस्ट आउट किया है। It has enriched our life and added the subsidiary to the growth elements and facilities of the comfort of our life। आज की तारीख में इन सब चीजों ने हमारे जीवन को बहुत ही सुविधापूर्ण बना रखा है और हमें हर तरह का कंफर्ट और फैसिलिटीज अवेलेबल कर रहा है। ये चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, कम्युनिकेशन कैसे देश को डेवलप करता है और इन सब का मॉडर्न इकोनॉमी में क्या योगदान रहता है और बड़ी मतलब मुसीबत वाले डेंस और जो जगह पर भी हम सामान कैसे पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम देखने जा रहे कि ये जो डेंस बहुत क्या कह सकते हैं मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स जो है वो कैसे काम करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है लोकल एरिया तक कैसे प्रस्यूट करता है, जगह पर कैसे पहुंच अपनी हासिल करता है और ग्लोबल ट्रेड जहां इंडिया आज खड़ा है उस विश्वव्यापी व्यापार में हमारा भी हिस्सेदारी है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। सो यहाँ पर हम आएंगे फिगर 7.1 में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे हम देख सकते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। जो जमीन पे चलते वो सारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आते। अगर हम देखें तो रोडवेज है, रेलवे से और पाइपलाइन है। ओके, पाइपलाइन में भी ट्रांसपोर्टेशन होता आप पढ़ चुके हैं। बॉक्साइट की सर्विस जो है पाइपलाइन के थ्रू दिया जाता था यानी कि पेट्रोलियम भी पाइपलाइन के जरिए क्या होता है, क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। देयर वाटर, पानी के अंदर हम देखें तो देश के अंदर जो वाटर का में व्यापार होता है उसे इनलैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और दूसरा जो है ओवरसीज, ओवरसीज मतलब इंटरनेशनल वाटरवेज पे सेल करना और चीजों को बेचना। एयर ट्रांसपोर्टेशन में हम देखेंगे डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि घरेलू उड़ानें जो अपने देश के अंदर ही उड़ान करते हैं, उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों एयरलाइंस सिस्टम है। इंटरनेशनल में भी आज की तारीख में पब्लिक और प्राइवेट दोनों एयरलाइंस वर्क कर रही है। इंटरनेशनल मतलब देश के बाहर जो है उड़ान करती है या देश के बाहर लोगों को लेके जाती है। आज के लिए बस इतना ही, हम बाद में इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड और रोड के अलग अलग डिफरेंसेस और ये सारी चीज आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क है। यू हाउ टू गो थ्रू विद द पेज नंबर 83
बेसिकली आपका मैप दे रखा है, नेशनल हाईवे दे रखे, मैं याद करने के लिए नहीं कह रही, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जरूर ध्यान दें गोल्डन क्वाड्रिलेटरस के बारे में, देन कॉरिडोर्स के बारे में जो कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स हैं उनके बारे में, और वो कौन कौन सी मेन एरियाज को कनेक्ट करते हैं। सो प्लीज गो थ्रू विद दैट। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, you have to give me about what is the main necessary or the necessity of, okay let it be, मैं इसको बाद में करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि पूरा आंसर यहाँ से नहीं आ पाएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो आप इसे पढ़ें, ध्यान रखें, होमवर्क नहीं है, सिर्फ एक मैप को आपको देखना है। That's all for today.